Good morning, class 7th. The explanation of chapter 16 has been completed now, and now we will discuss the question answer and book exercise. The first question is answer the following question. A question: where does Akash live? So you know very well the answer is in the very first line. What is Akash lives in a village. Here students, in further we also can notice that the name of the village is Bisara. So you can write the answer Akash lives in a village named Bisara. So it should be the answer of the first question. Here comes the second. Second question is what was the problem of villagers? What did they decided to do? So what was the problem of villagers? We know according to the chapter the problem of the villagers was the shortage of water या lack of water. जो गांव वाले थे उनकी प्रॉब्लम थी पानी की कमी शॉर्टेज हो गई थी. वॉट डिड दे डिसाइडेड? तो दे डिसाइडेड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर. उन्होंने निश्चय किया था कि वो प्रत्येक बूंद पानी की बारिश के सीजन में बचाएंगे. तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे डिसाइडेड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर. वॉट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द विलेज? तो you know very well the chapter is on the water basis कि the main important theme of the chapter is to save water. तो as the गांव as the village was suffering from the lack of water, तो the program was launched there was water conservation program. तो which program was launched there? Water conservation program. Now comes the next. Fourth question D. What is meant by the word conservation? So the word conservation means to save something. Now comes the next. क्योंकि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? बचाना, किसी चीज को बचाना. What activities have been done under the water conservation program? क्या क्या एक्टिविटीज की जाती थी वाटर कंजर्वेशन में? तो यू नो वेरी वेल द आंसर इज इन द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज what? Making made by the field. Second, deepen the water bodies like pond and wells and clean them, and dam will be repaired and new dam will be constructed. So these are the what activities of the water conservation. So you can write the answer like this. Under the water conservation programs, people try to harvest rainwater in various ways. The first type by making या erecting made or band around the field. Second, by preparing the by deepen and cleaning the pond and wells. And the third is the old dam should be repaired and new dams will be made or built or constructed. Okay, तो दिस कैन बी द आंसर कि क्या क्या एक्टिविटी की जाती है. फील्ड के किनारे खेतों के किनारे मेड़ बनाना या बंद बनाना, पानी भर लिया जाता है. दूसरा डैम नए बनाए जाएं, पुराने डैम का रिपेयर किया जाए नदियों पर. और तीसरा था कि जो पॉन्ड होते हैं, कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, उनको गहरा किया जाए और उनको सफाई की जाए. इस तरह से वाटर कंजर्वेशन के प्रोग्राम के अंतर्गत ये एक्टिविटीज आती हैं. नाउ वी विल डिस्कस द बुक एक्सरसाइज. बच्चों ये आपको कॉपी में भी करनी होगी. तो चूज द करेक्ट ऑप्शन. अ डैम इज, तो व्हाट डू यू मीन बाय और अंडरस्टैंड बाय डैम? तो डैम इज नॉट, इट इज नॉट रिवर, इट इज नॉट पॉन्ड, इट इज नॉट वेल, इट इज व्हाट? बिग वॉल अक्रॉस ए रिवर. एक दीवार सी बनती है नदी की तरफ, उसको नदी इस तरह से बह रही है तो नदी के क्रॉस करती हुई वो दीवार बनती है जिससे उसका पानी रोका जा सकता है बारिश के दिनों में. ए स्लोगन मीन्स, स्लोगन क्या होते हैं? यू नो वेरी वेल, वर्ड और फ्रेजेस गिविंग मैसेज. स्लोगन वो संदेश देने वाले नारे होते हैं जो किसी भी रैली में या यूज किए जाते हैं. द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग. तो दीज आर द फिलअप्स. यू जस्ट राइट द क्वेश्चन एंड mark the correct. So in your notebook you can write the full answer. Now comes the next. Choose the
noun from the box and write against suitable words given below. One has been done for you. So listen here, the verbs, some verbs are given and you have to make them noun. For example, create. Create और create से क्या बना हुआ है? क्रिएटर. मतलब क्रिएट माने निर्माण करना, और क्रिएटर ओ आर लगाने से वो नाउन बन गया. ई हटा दी, ओ आर लगा दी, तो नाउन बन गया, तो बन गया क्रिएटर माने निर्माण करने वाला. डेडिकेट. डेडिकेट से क्या बन रहा है यहाँ पे नाउन? आप देखिए, डेडिकेशन. डेडिकेट माने समर्पित करना, और डेडिकेशन माने हो पाता है समर्पण. नो माने जानना. नो से बनता है नाउन नॉलेज. नॉलेज मीन्स ज्ञान. प्रोड्यूस माने उत्पन्न करना, उसका हो जाता है प्रोडक्शन, मतलब पूरा उत्पाद. फेल माने असफल होना. फेलियर माने असफलता. ये नाउन बन गया. लाफ माने हंसना, ये क्रिया है. लाफ्टर माने हंसी, ये नाउन बन जाएगा. एंजॉय माने आनंद लेना किसी चीज का, और इंजॉयमेंट हो जाएगा आनंद. इस तरह से ये नाउन बन जाएगा. नाउ कम्स द लास्ट एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन टू कंप्लीट द पैराग्राफ. There are some words: thirsty, wash, floor, bathe, school, work, rain, kitchen, water, flow. So listen, you have to complete this story by filling these water. One morning when Geeta's mother went to the kitchen, कहाँ गई? किचन में. And turned on the tap, there was no water. How can I make tea without? वाटर नहीं था किचन में, तो देखिए क्या मिला, तो वाटर आ जाएगा यहाँ. She complained. Soon father woke up. पिताजी जग गए. He also turned on the tap. उन्होंने भी नल खोला. There is no water. He said, how can I bathe? तो उन्होंने सोचा मैं कैसे नहा पाऊंगा. Without water, the doorbell rang. The doorbell rang. फिर क्या हुआ? घंटी बजी. And the maid came in. तब वो नौकरानी आई. She made to grumble. She began to grumble. वो भी नाराज होने लगी. How will I wash the dishes? कि वो कपड़े, वो डिशेज मतलब बर्तन और कपड़े कैसे धोएगी. And mop the floor, और फर्श कैसे साफ करेगी. Why then Geeta was already ready for school. She could not fill her water bottle and cried, I will be thirsty. कि प्यासी रहूंगी all day. Just then the water began to flow. और तभी वाटर चलने लगा, फ्लो. From the tap, mother smiled and everyone began to do all they were wanting. तभी पानी आ गया और सारे लोग काम करने लगे. Now comes the next exercise, that is make sentence with more than and fewer than using the table below. तो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है बच्चों, और आपको उसके अकॉर्डिंग ही दो वर्ड का यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाना है. मोर देन मतलब किसी नंबर ऑफ अमाउंट से ज़्यादा. फेवर देन किसी नंबर ऑफ अमाउंट से कम. तो आपको कैसे यूज करना है? जैसे देयर आर, मोर या फेयर में से एक चीज लेंगे. जैसे मोर बुक्स ऑन दिस डेस्क देन ऑन दैट डेस्क. मतलब यहाँ पर इस किताबें जो हैं वो इस डेस्क की अपेक्षा ज़्यादा हैं बजाय उस डेस्क के. मतलब दो टेबल का कंपैरिजन हो रहा है. दो टेबल पे से एक टेबल पे ज़्यादा किताबें और दूसरे पर कम. देयर आर fewer books on this table than that. इसका मतलब हो जाएगा कि उस डेस्क से कम किताबें हैं इस डेस्क पर. क्लियर? तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस खुद प्रैक्टिस करेंगे. देयर आर मोर लेटर्स इन दिस वर्ड्स देन इन दैट वर्ड. क्लियर? इस शब्द में उस शब्द से ज़्यादा शब्द हैं, लेटर हैं, अक्षर हैं. और आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, देयर आर फ्यूअर लेटर्स इन दिस वर्ड देन इन दैट वर्ड. उससे कम शब्द है. क्लियर? तो आप इसकी प्रैक्टिस खुद करेंगे बच्चों, और खुद अपने सेंटेंस बनाएंगे. मोर देन और फ्यूअर देन दोनों से ही बन जाएंगे वो. यहाँ पर आपको देखिए डैम के बारे में बता रखा है, तो ये सीख लीजिए क्या होते हैं डैम. ये पिक्चर दे रखी है, आप देख सकते हैं अपनी बुक में. डैम्स आर मासिव बैरियर्स बिल्ट अक्रॉस रिवर. मासिव बैरियर्स मतलब बड़ी मात्रा में बनी हुई दीवारें होती हैं, चौड़ी चौड़ी और मोटी. बैरियर्स माने रोकने के लिए जो बनाई जाती हैं. अक्रॉस द रिवर, नदी के क्रॉस पे. ठीक है.
नदी के दोनों किनारों के बीच को मिलाते हुए बनाई जाती हैं। एंड स्ट्रीम टू कन्फाइन, और उस धाराओं के, नदी और धाराओं के, टू कन्फाइन माने रोकने के लिए, एंड यूटिलाइज द फ्लो ऑफ वाटर, तो उसको रोकने के लिए, उसको बंद करने के लिए और उसको यूटिलाइज उपयोग में लाने के लिए उस फ्लो ऑफ वाटर को फॉर ह्यूमन पर्पज। तो बच्चों खेती वगैरह के लिए और उसके लिए फिर इन्हीं डैम से ही सप्लाई किया जाता है। सच एज इरीगेशन, तो सिंचाई के लिए, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और आपको पता है बिजली का भी उत्पादन होता है पानी से, तो जनरेशन उत्पादित की जाती है बिजली का। तहरी ग्राम, ये जो आपको दे रखा है वो तहरी डैम की पिक्चर दे रखी है, आप देख के समझ सकते हैं।